شزیب وڑیچ، آپ کو یہ اعزاز جا رہا ہے کہ اس کالج کی پہلی جو کلاس یہاں سے اب باقاعدہ طور پر فیئر ویل پارٹی کے ساتھ رخصت ہو رہی ہے، اس میں آپ شامل ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ آج آپ خوش ہیں یا کہ آپ افسردہ ہیں؟ نہیں، آپ تو ظاہر ہے خوشی ہوں گے کیونکہ پہلی ہماری فیئر پارٹی ہے، اور سب سے پہلے ہم پرنسپل صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے پارٹی رکھی، تو بہت میں خوش ہوں، اور ہم دوست صاحب نے اللہ گلہ بھی سب سے پہلے کیا ہے، تو پھر آپ پارٹی کا جو ہے اہتمام ہو رہا ہے، تو ہماری جو اسٹیج پرفارمنس ہے وہ شروع ہونے والی ہے، تو میں آج بہت ہی نہایت خوش ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں سب اساتذہ کا جنہوں نے ہمارے یہ سارا کچھ۔ اچھا، میں فیڈ بیک یہ بھی لینا چاہتا ہوں کہ کالج کے جو پروفیسرز ٹیچرز نے آپ کو پڑھایا ہے، آپ ان کی پڑھائی سے مطمئن ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان کی پڑھائی سے اتنا مطمئن ہوں، اور میں کسی اساتذہ کی برائی بھی نہیں کرتا، جیسا بھی انہوں نے پڑھایا میں بہت خوش ہوں، اور انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ فرسٹ ایئر میں بہت اچھے نمبر آئے تھے، تو فرسٹ آیا تھا اس کالج میں بھی، تو انشاءاللہ سیکنڈ ایئر میں فرسٹ آؤں گا، تو ایک بات ضرور ہے کہ میں بے شک علی پور چٹا سے آیا ہوں، لیکن میں اس کالج کا نام روشن کروں گا اور ضرور لازمی۔ میں نے بھی کافی کالجز میں پڑھا ہے، یونیورسٹیز میں پڑھا ہے، تو دیکھیں جو پروفیسر ہیں نا وہ بڑے رکھے سے ہوتے ہیں، آ کر کلاس میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، کسی سے بات بھی نہیں کرتے، تو یہاں پر ٹیچرز کا رویہ کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں ہر کالج میں ایسا ہوتا ہے، پروفیسر کرتے ہیں، لیکن یہ میری زندگی کا بعد کالج ہے، میں نے بہت ہی جانچ پڑتال کی ہے، ہر ایک نقطے تک پہنچے، لیکن مجھے کوئی بھی برائی نہیں محسوس ہوئی، ہر ایک ٹیچر آتا ہے اپنی حاضری وغیرہ اپنے پڑھا کر جاتا ہے، چیک کرتا ہے ہوم ورک، ایسے کریں جیسے کہ میٹر کے کسی بچے کو پڑھا رہے ہیں، تو فل محنت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس مطلب مقام پر پہنچ چکے ہیں اور ہمارا یہ لیول اور اسٹیٹس ہو چکا ہے۔ شزیب وڑیچ، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو زندگی میں ہر میدان میں کامیاب کرے، تو اسی کے ساتھ اب باقی اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ٹیچر، آپ یہاں پر، اب میں ٹیچر کہتا اچھا نہیں لگ رہا، یہاں پر آپ پروفیسر ہیں یہ برکت ویلفیئر کالج کی، تو آپ نے بچوں کو یہ پورا سال جو ہے فرسٹ ایئر کو کنٹرول کیا ہے، تو کیا فیل کیا آپ نے؟ لڑکیوں میں اور لڑکوں میں کیا فرق ہے؟ مجھے تو کوئی ڈفرینس نظر نہیں آیا لڑکیوں میں اور لڑکوں میں، اس لیے کہ وہ استاد ہی نہیں جس کو ڈفرینس نظر آئے، مجھے یہ سارے اپنے بچے لگتے ہیں اور میں نے ان کو ایسے ہی ٹریٹ کیا، اور اللہ کا شکر ہے میں کامیاب رہی ہوں اس میں۔ بچیاں اکثر گھروں میں ہوتی ہیں، اپنی والدہ کے زیر سایہ ہوتی ہیں اور بڑی ادب سے بولتی ہیں، بڑی سہمی رہتی ہیں، تو یہ بچے جو ہیں یہ تھوڑے سے رف ہوتے ہیں، تو آپ کو ان کو ڈیل کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش تو نہیں آئی؟ بچیوں میں اور بچوں میں فرق ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی قابلیت دی ہے کہ میں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو گائیڈ بھی کیا اور کنٹرول بھی کیا ادارے میں، کسی قسم کا کوئی ڈسپلن میں پرابلم کریٹ نہیں کی۔ ہاں، بچے تو میں نے سنا بھی ہے، کچھ بچے تھوڑی سی باتیں کرتے تھے لیکن بعد میں کہتے تھے کہ ہے ہمارے بھلے والی ساری باتیں، میڈم نے ہمیں کنٹرول کیا نا تو ہماری پڑھائی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے۔ تو اب آج ان کی فیئر ویل ہے، تو آپ کی کلاس تو اب سیکنڈ ایئر میں جائے گی، لیکن یہ ہے کہ سیکنڈ ایئر کو بھی ہو سکتا ہے آپ پڑھاتی ہوں کوئی سبجیکٹ؟ جی میں پڑھاتی ہوں۔ ہاں جی، تو یہ اس کالج کی پہلی فیئر ویل ہے، پہلی یعنی کہ باقاعدہ طور پر، پہلے بھی سیکنڈ ایئر والے بچے گئے ہیں لیکن کبھی ان کی کوئی فیئر ویل نہیں ہوئی، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ اس فیئر ویل کو کیسا ہونا چاہیے اور آئندہ سے کیا انتظامات؟ اس فیئر ویل کو ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے، اور لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے بڑا اچھا ہم نے اس کا اہتمام کیا اس پروگرام کا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں کامیاب رہے ہیں، بچے خوش ہیں اور بچوں کی خوشی ہوتی ہے۔ بڑی مہربانی، آپ سے یہ بچوں کے بارے میں چند باتیں کی ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ نے بہت اچھے بچوں کے بارے میں اپنا کنٹرول اور اپنا سارا کچھ بیان کیا ہے، پھر انشاءاللہ پارٹی کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ پروگرام آج ہم لوگ یہاں پر پروگرام کی ہوسٹنگ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے اس ادارے اور اس ادارے کے پرنسپل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس تقریب کا آغاز سب سے پہلے ذکر خدا بندی سے کرنا چاہیے۔ اگر انسان چاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے تو اسے نماز ادا کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہو تو اسے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بابر اقبال، آپ اسٹیج پر آئیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. جزاکاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے بابا اقبال جنہوں نے اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں کلام الہی سنایا اور ہمارے دل اور سماعتوں کو منور فرمایا. تو اب سے پہلے میں جہاں ذکر خدا ہوتا ہے اس کے بعد ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت سے گل لوگ سارے پڑھے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم حضور طاہر سدرا حضور جانتے ہیں حضور طاہر سدرا حضور جانتے ہیں ماشاءاللہ. بابر اعظم نے خوبصورت کلام ہمارے سامنے پیش کیا. اور اس کے ساتھ میں کچھ اپنے خیالات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہوتا ہے نا سب سے پہلے میں مس لیگر اور ان کی کلاس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ دعوت دی ایک تقریر کی. وہ نہ ہوتے تو ہمیں یہ کچھ نہ ملتا. جی علی بھائی آپ نے بالکل اچھی بات کیا ہے، لیکن آپ ہمارے سینئرز ہیں اور آپ کے امتحانات قریب ہونے کی وجہ سے آپ کو کالج سے فارغ کیا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے سوچا کیوں نہ تھوڑا سا گل مل جائے آپس میں. تو ہم نے اس تقریب کا پرنسپل کی اجازت کے ساتھ اہتمام کیا ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. ہمارا یہ فرق بنتا ہے کہ ہم بھی آپ لوگوں کو خوش رکھیں. اس کے ساتھ میں نا اب یہ دعوت دینا چاہتا ہوں ادریس کو کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں ادریس بیگ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پرنسپل، محترم اساتذہ اکرام اور بے ہم ساتھیوں، السلام علیکم. کبھی رک گئے، کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے. یوں ہی عمر ساری گزار دی، یوں ہی زندگی کے ستم سہے. کبھی نیند میں، کبھی ہوش میں،
तू जहाँ मिला तुझे देख कर, ना नजर मिली ना ऊँट हिले, यूं ही सर झुका कर गुजर गए। कभी जुल्फ पर कभी चश्म पर, कभी तेरे हसी वजूद पर, जो पसंद थे मेरी किताब में वो शेर सारे बिखर गए। मुझे याद है कभी एक थे मगर आज हम हैं जुदा जुदा, वो जुदा हुए तो संवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर कदर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर कदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ से गुजर गए। शुक्रिया भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरा इस इदारे में सबसे ज़्यादा अरसा सर निस्बा के पास गुजरा। मैं इनके पास क्लास 5 में आया था और इसके साथ कंटिन्यू क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक इनके साथ हमारा ये वाई सेशन था कि हम इनके तवील अरसे तक इनकी गाइड में रहे। इसके साथ साथ मैं सर इब्रार और मदर हाशमी साहब को भी इस गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगा कि सर इब्रार ने हमें इस एक साल में इस मकाम पर ला खड़ा किया कि हम अब ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाब हो सकते हैं। और मदर हाशमी साहब वो बहुत एक ऐसी शख्सियत मेरी इस किस्म की मदद की कि हर तालीम में हर जगह उन्होंने मुझे गाइड और तमाम टीचर से मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक। शुक्रिया। इसी के साथ मैं दावत देना चाहूँगा उस्मान को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरी ज़िंदगी के अनमोल वक्त का जो मुख्तसर हिस्सा यहाँ गुजरा है वो मैं मुख्तसर अंदाज में बयान करना चाहूँगा। जब पहले दिन में इस इदारे में मैं दाखिल हुआ तो मैंने यहाँ अपने रोशन मुस्तकबिल की झलक देखी और इसी तरह मैं जनाब प्रिंसिपल साहब मियां सफदर अली साहब की शुक्रगुजार देता हूँ कि मेरे निगरानी तमाम साथिया कराम ने हमें इल्म की दौलत से फैज़याब किया और मैं जनाब प्रिंसिपल साहब की काविश को सराहता हूँ कि उन्होंने हमें गुजरात के तमाम प्राइवेट इदारों से बढ़कर यहाँ कॉलेज वाला बेहतरीन माहौल फराहम किया। आज मेरे सामने ऐसी अजीम हस्तियाँ बैठी हुई हैं जिन्होंने हमें अपनी इज्जत मेहनत और लगन से पढ़ाया है कि हमें कोई जहालत गुमराह नहीं कर सकती। उनकी इस कोशिशों को मैं ज़िंदगी भर फरामोश नहीं कर सकता। साथना की इज्जत तकरीम के हवाले से चंद इशारात पेश करता हूँ। ये जो हमारी दरसगाहों के उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। सुनी रुदाद हम जब किसी की कामयाबी की, हर एक रुदाद में ये मरकज़े रुदाद होते हैं। गुमनामी के अंधेरों में था एक पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे उन्होंने अनजान बना दिया। एक कैसी मेहरबानी हुई कि उस्ताद जी ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। अभी मैं क्लास फर्स्ट ईयर और उनके इंचार्ज दिगर परवीन साहब का दिल के अल्लाह कराने से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस तकरीब का एहतमाम किया। फर्स्ट ईयर वाले साथ भाइयों ने हमें बहुत इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा और हमेशा हमें भाई क्या कर पुकारा, मैं हमेशा इन्हें याद रखूँगा। अब मैं अपनी क्लास के दोस्तों की बात करता हूँ जिन्होंने मुझे इस मुख्तसर वक्त में अपनी मीठी और बातों से और हंसी मज़ाक से खुशगुरम रखा और कभी भी किसी भाई का अपने दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं रखा। मैं इन प्यारे दोस्तों के नाम चंद इशार कहूँगा। तुम क्या जानो हमारी दोस्ती की गहराई को या दोस्त, हम जब साथ होते हैं तो वफा करते हैं, जब दूर होते हैं तो दुआ करते हैं। दम है किसी में के मिटा सके हमारी दोस्ती को, जंग तलवारों को लगता है जिगरी यारों को।
जिंदा है कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे। आज जिंदा है कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे। नाराज ना होना हमारी शरारतों से यारो, यही तो वो पल है जो कल याद आएंगे। और अब मैं तमाम सादा कराम से यही कहना चाहूँगा कि आप सब हमें अपनी दुआओं से रुखसत कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आप सब से गुजारिश है कि अगर मुझसे किसी को कोई शिकायत या कोई शिकवा है या किसी की कोई गिरफ्तारी हुई हो तो दिल से माफ़ कीजिएगा। अस्सलाम। मैं दावत देना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत बात हैं और मेरे बहुत अच्छे से दोस्त हैं, चौधरी शदेब रैक। मौजूद असातिज़ा इकराम, प्रिंसिपल साहिब और मेरे हमजमात साथियों, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हुई है, आज हम सब इकट्ठे हैं, असातिज़ा इकराम भी इकट्ठे हैं, प्रिंसिपल साहब हमारे साथ बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं सब, क्योंकि आज फेयरवेल पार्टी है। तो सबसे पहले तो हम सब सेकंड ईयर की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं हम फर्स्ट ईयर क्लास का, बिलखसूस टीचर निगत का, जिन्होंने हमारे लिए ये इंतज़ाम किया, हमें पार्टी दी। तो नहायत ही बहुत ही पुरबकार ये मौका है कि हम इकट्ठे हुए हैं, आराम से इंजॉय भी कर रहे हैं। तो बात ये मैंने करनी थी कि ताल्लुक़ मेरा अफजाबाद इलाके से है। अब गुजरात आया हूँ तो यकीन माने कॉलेज जितने भी कॉलेज देखे हैं बहुत ही अटेंडेंस उनकी होती है, बहुत ही उनकी जो है परसेंटेज होती है बच्चों की। लेकिन असल बात है अगर किसी कॉलेज में 100 बच्चे हैं ना तो 50-40 हाजिर होते हैं। और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि हमारे कॉलेज जैसी स्टडी किसी कॉलेज में गुजरात में नहीं होती। दूसरे कॉलेज में आप जाएं तो प्रोफेसर आते हैं, सिर्फ समझाते हैं, लिख के वो भी बात ही नहीं करते कि बच्चा आया या नहीं आया या तुमने किया या नहीं। अब हमारा मसला ये है, असातिज़ा इकराम आते हैं, हमें ऐसे लीड करते हैं, अपने बच्चों जैसा प्यार देते हैं, दोस्तों जैसा प्यार करते हैं, सब असातिज़ा अच्छे हैं। 2 साल मैं रहा हूँ यहाँ और अब कंप्लीट हो रहा सेशन। लेकिन असल बात जो ये है कि मैं इस कॉलेज जो ये कॉलेज है मेरी ज़िंदगी का एक तोहफा है और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने फ्यूचर में इस कॉलेज को भी याद रखूँगा और इस कॉलेज का नाम भी रोशन करूँगा। और बिलखसूस प्रिंसिपल साहब ने बहुत ही अच्छी काविशों से इस स्कूल को, इस कॉलेज को बदल कर रख दिया है, डिसिप्लिन कायम किया है। तो मुझे सबसे जो अच्छी लगी है, 2 साल में पढ़ा हूँ, पहले साल में मुझे सबसे ज़्यादा स्टेटस मेरा हुआ है वो हुआ है चांद आफ्ताब साहब की तरफ से। और दूसरे नंबर पे जो दूसरे साल में मेरी जो स्टेटस आई हुआ है वो मज़हर हाशमी साहब की तरफ से है। लेकिन असल बात है मज़हर हाशमी साहब का ये 1 साल का स्टेटस नहीं है, ये उन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी का जो आने वाली ज़िंदगी है उसका भी स्टेटस हाई कर दिया है। अब मैं उनकी काबिलियत से आगे भी मेहनत करूँगा और इंशाल्लाह हर साल और इंशाल्लाह आगे क्लास में भी कामयाब होकर दिखाऊंगा। और मज़हर हाशमी साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरा स्टेटस यहाँ तक पहुँचा दिया। में कुछ फन ऐड किया है, हम इधर कुछ पर्चियाँ रखेंगे जिन पर टीचर्स के नाम लिखे होंगे और उनके ज़िम्मे एक काम लगाया गया है। जिस टीचर आएंगी और उनमें से पर्चियाँ मुंतखब करेंगी, जिस पर्ची में जिस टीचर का नाम निकलेगा वो जो काम होगा वो टीचर को। पता नहीं अब ये अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, सबसे पहले प्रिंसिपल का लिख लाया। बात ये है कि मुझे आप किसी चीज़ के लिए तो मैं यूनिवर्सिटी तक जो है ना ये स्टेज संभालता रहा हूँ और मेरे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि आप मेरे सादा कराम बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, तो मैं जो है ना अगर आप मुझसे कोई और चीज़ कहते तो ठीक था, लेकिन ये भी चले दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। बहुत सी चीज़ सुनते सुनाते रहते हैं, तो आप लोगों के लिए जो पीछे बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, पर्दा कभी खिड़की से हटाकर नहीं देखा, पर्दा कभी खिड़की से हटाकर नहीं देखा, इस शहर के लोगों ने समंदर नहीं देखा, आते हुए तूने भी नजर मुझसे चुराई, जाते हुए मैंने भी पलट कर नहीं देखा। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो,
उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। शुक्रिया। आपका नाश्ता टाइम पे नहीं पहुंचा तो क्या रिएक्शन नौशा नहीं आपने क्लास इंचार्ज मिस निगत को कि वो आए और अपनी अदा करें। हम दोनों इंचार्जेस हैं जो फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के इंचार्जेस। हमारी भी ख्वाहिश थी कि हम एक बच्चों को कोई ना कोई छोटा मोटा जो है इनके लिए पार्टी या कोई ऐसा प्रोग्राम रखें। तो हम दोनों जो टीचर्स हैं वो गए हैं प्रिंसिपल के पास। उन्होंने ना सिर्फ हमें गाइड की है इस मामले में बल्कि हमारी मामलत भी फरमाई है और हमें गाइड की है मुकम्मल तौर पे। और उसके बाद फिर ये जो प्रोग्राम हमने रखा है उसमें जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनकी मामलत के साथ हमने ये छोटा सा जो प्रोग्राम है इसका इत्माम किया है। और मैं इन टीचर्स की और प्रिंसिपल की मशहूर हूँ कि बच्चों की जो है वो ये छोटा जो फंक्शन है जो जिसको हम जिसे लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए इसको हमने रखा है और इसका इत्माम किया है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके लिए यही है कि इदारों के अंदर बच्चे जाते हैं और वहाँ पे हमेशा नहीं रहते बल्कि उन्होंने एक ना एक दिन वहाँ से जाना ही होता है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को यहाँ से कामयाबी से हमकिनार करें और आप लोग यहाँ पे ना सिर्फ प्रिंसिपल बल्कि अपने टीचर्स अपने स्कूल का नाम रोशन करके निकले यहाँ से। और आपका नाम और हमेशा हम अच्छे स्टूडेंट्स में लेते रहे कि ये बच्चे जो हैं इन्होंने एक नाम दिया अपने इदारे को। और अल्लाह ताला बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। आप जहाँ भी जाएं अपने इदारे का अपने असातिज़ा का जो है वो नाम रोशन करें। थैंक यू। को दावत देना चाहता हूँ। उनने हमारी बहुत मदद की है। उन्होंने हमें हर कहाँ बहाँ हमें समझाते रहे हैं। अब मैं दावत देता हूँ सारी क्लास आपको कि वो आए और अपने जनाते हैं। बात यह है कि सबसे पहले तो ये बात है कि प्रिंसिपल साहब तशरीफ फरमाया यहाँ पे, तो उन्होंने मेरे जिम्मे जो है वो सेकेंड ईयर की इंचार्जशिप जो है वो मुझे दी। मैंने कोशिश की कि इसको आसान तरीके से साथ अंजाम दूँ। जो उन्होंने मेरी जिम्मेदारी दी है उसको अच्छी तरह काम करूँ। तो मैंने काफ़ी हद तक अपनी विसासत के मुताबिक कोशिश की है कि मैं मुकम्मल तौर पर जो है वो इनकी मांगों पर पूरा उतरूँ। दूसरे नंबर पर यह है कि ये पार्टी जो है जिसका इत्माम किया गया है ये नज़दीकत में बड़ा जोश खरोश था। इस सिलसिले में प्रिंसिपल साहब से इजाज़त चाहिए तो उन्होंने इजाज़त दे दी और नज़दीकत ने बड़ा इत्माम किया, इस पर बड़ी कोशिश की है और बड़े जोश खरोश से इसको जो है वो पाए तंगीद तक पहुँचाया है। तो मैं वसीयत इंचार्ज सेकेंड ईयर का और वसीयत टीचर्स इन्होंने दावत दिया है तो मैं इनका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। नज़दीकत के लिए क्लैपिंग हो जाए। बात यह है कि जहाँ पे हम भी ज़माना तालब इल्मी में एक दिन जहाँ अपने स्कूल से कॉलेज से यूनिवर्सिटी से जुदा होते हैं तो ये तो एक रीत है, पुरानी रस्म है जो चली आ रही है और चलती रहेगी। तो हर एक जिस तरह हर एक जो दुनिया में आता है वो एक दिन ज़ाहिर उसने जाना था दुनिया से। इसी तरह जो कॉलेज में एडमिट होते हैं स्टूडेंट जो है उन्होंने एक दिन इस कॉलेज से फारग भी होना होता है और अगर अच्छी तरह वो फारग हो जाएंगे, अच्छा वक्त गुजार कर फारग होंगे तो हमेशा टीचर के दिलों में रहते हैं, हमेशा टीचर उनको याद करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह सेकेंड ईयर के जितने भी बच्चे हैं इंतहाई मुअद्दब तरीके से इन्होंने अपना वक्त गुजारा है और ये ना सिर्फ इन्होंने असातिज़ा की इज़्ज़त की है बल्कि ये अपनी पढ़ाई में भी मशहूर रहे हैं और जिस तरह असातिज़ा ने इनकी रहनुमाई की है ये उस तरह उनकी रहनुमाई के सिलसिले में ये परवान चढ़ते रहे हैं। तो आखिर में मैं प्रिंसिपल साहब और जनाब प्रिंसिपल साहब
اور میڈم کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں عزت دی اور اس تقریب کا اہتمام کیا. بڑا ہی شکریہ. کے ساتھ ہم میں یہ دعوت دیتا ہوں آپ جان کو بہت اسٹیج پہ ہے اور ہم نے رابطہ ہے. السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج آپ کی فیوریٹ پارٹی ہے، دونوں اوکیزنس ہیں، خوشی کا بھی موقع ہے اور غم بھی ہے تھوڑا سا دیر میں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ مستقبل میں ایک اچھے کیریئر کو لیڈ کریں. تو یہ پہلے میں 2 پیسز آف ایڈوائس آپ کو دوں گا. یہ 2 ایڈوائسز جو تھیں، یہ ایک بادشاہ نے اپنے خاص سفیر کو جب وہ رخصت ہونے لگا تھا وہاں سے، اس نے کہا تھا کہ جب تم جاؤ گے یہاں سے دربار سے، یہ 2 باتیں ذہن میں رہیں. انگلش میں ہیں: give thine ear to everyone, give thine ear to everyone, but thine tongue to none. اس کی میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں کہ جب کہیں آپ جائیں تو اپنے کان یعنی بات سب کی سننی ہے لیکن زبان نہیں دینی، یعنی بولنا کم نہیں. اور دوسری بات جو اس بادشاہ نے اس کہی تھی کہ بریوٹی از دا سول آف وٹ. اختصار جو ہے یہ روح کی علامت ہے، اگر کی نشانی ہے کہ جتنی مختصر بات ہو وہی کریں. یہ 2 نصیحتیں آپ کو میں کہہ رہا ہوں، آپ یہاں سے لیو کر رہے ہیں تو یہ 2 نصیحتیں دے رکھیے گا کیونکہ پروفیشنل فیلڈس میں یہ دونوں باتیں بہت کام آتی ہیں. اب کچھ اشعار جو ہے، یہ کب کہتی ہوں تم میرے گلے کا ہار ہو جاؤ، یہ کب کہتی ہوں تم میرے گلے کا ہار ہو جاؤ، یہیں سے لوٹ جانا، یہیں سے لوٹ جانا، تم جہاں سے بیزار ہو جاؤ. ملاقاتوں میں وقفہ اس لیے ہونا ضروری ہے، ملاقاتوں میں وقفہ اس لیے ہونا ضروری ہے کہ تم ایک دن جدائی کے لیے تیار ہو جاؤ، کہ تم ایک دن جدائی کے لیے تیار ہو جاؤ. بہت جلد سمجھ میں آنے لگتے ہو، بہت جلد سمجھ میں آنے لگتے ہو زمانے کو، بہت آسان ہو تھوڑے بہت دشوار ہو جاؤ. بلا کی دھوپ سے آئی ہوں میرا حال تو دیکھو، بلا کی دھوپ سے آئی ہوں میرا حال تو دیکھو، بس اب ایسا کرو تم سایہ دیوار ہو جاؤ، بس اب ایسا کرو تم سایہ دیوار ہو جاؤ. اور آخری شعر ہے: ابھی پڑھنے کے دن ہے لکھ بھی لینا حال دل اپنا، ابھی پڑھنے کے دن ہے لکھ بھی لینا حال دل اپنا، مگر لکھنا تبھی جب لائق اظہار ہو جائے، مگر لکھنا تبھی جب لائق اظہار. تھینک یو سو مچ سر. اب میں ان ٹیچر کو دعوت دینا چاہوں گا جنہوں نے ہمیں اس تیاری کنڈکشن کی کرنے میں بہت مدد کی ہے. اس پر سر عزیز طلباء، جناب انسپیکٹر صاحب، پرنسپل صاحب، وائس پرنسپل صاحب اور صاحب بھائی کرام، بچے آج سیکنڈ ایئر کے رخصت ہو رہے ہیں. اس حوالے سے سب نے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. میری بھی بہت نیک خواہشات ہیں آپ کے لیے. آپ نے یہاں پہ جتنا وقت گزارا بہت اچھا اور بڑا خوبصورت وقت تھا. پہلے جب میں آیا تو شعر بس 2 شعر ہی تھے جو آپ کو سنا دیے. اصل بات تو یہ ہے کہ آپ دل کے بہت قریب ہیں اور ہمیشہ قریب رہیں گے. جب بھی زندگی میں کبھی آپ کو ضرورت پڑے رہنمائی کے لیے تو یہاں پہ آپ تشریف لائیں گے تو سب اپنے باغ کیے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے اور ہر طرح سے آپ کو ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے انشاءاللہ ہمیشہ موجود رہیں گے. میں آپ کو جب بھی
क्लास में बात होती रही है तो अल्लामा इकबाल के हवाले से कई बातें हुई। तो इकबाल का एक शेर है, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे गर्दे राह हों जिसकी वो कार मातू है। तो अपने आप को पहचान के, अपनी हकीकत को पहचान के आगे बढ़ते जाना है। सफ़र अभी तो आगाज़ ही हुआ है। इकबाल ने कहा था, बड़े जाए गोहे गिरां तोड़कर, तिलिस्मे ज़मानो मकान तोड़कर। तो आगे बढ़ते जाएं, अपनी शख्सियत में भी बेहतरी लाएं, अपने अफकार को, अफ़ाल को, किरदार को, ख़यालात को पाकीज़ा करते जाएं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियाँ आपके कदम चूमने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप अपना सफ़र नेक नीयती के साथ करते रहेंगे। सबसे अहम चीज़ नेक नीयती है, बात कलील नहीं करनी। तो आखिर में दो बातें ज़िंदगी में जो आपके काम आने वाली हैं। हाफिज़ शिराज़ी ने कहा था, आसाइशें दो गिनती तफसीर ईद हो हर फस्त, बा दोस्तां तलत्तुफ़ बा दुश्मना मदारा। दोनों जहान का सुख, सुकून और करार सिर्फ इन दो बातों की तह में छुपा हुआ है। और वो दो बातें क्या हैं? बा दोस्तां तलत्तुफ़ बा दुश्मना मदारा। दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करो, जब किसी को दोस्त कह दो तो फिर उसके साथ हमेशा हर अच्छे बुरे वक्त में खड़े रहो। और बा दुश्मना मदारा, और दुश्मनों के लिए हमेशा अपना दिल खुला रखो। जब भी कोई मौका ऐसा आ जाए तो उनको माफ़ करने का मौका हो तो खुले दिल से माफ़ कर दो। तुम्हें दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी करार मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। वो आए और अपने रास्ते में सबसे पहले फंक्शन अरेंजमेंट कमेटीज़ में तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने ये प्रोग्राम जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया और हमें दावत दी और यहाँ पे स्टेज पर खड़े होकर बच्चों से बात करने का मौका दिया। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है और आप सब बच्चे जो हैं ये हमारे लिए बड़े प्यारे हैं। आप बेशक बड़े हो गए हैं और बच्चा जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आ जाता है तो वो समझता है कि मैं बड़ा हो गया, लेकिन अपने माँ बाप की नज़रों में, अपने साथी की नज़रों में बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा ही है। आप हमें बिल्कुल ऐसे ही नज़र आते हैं जैसे छोटे छोटे से बच्चे आप हमारे पास आए थे। कई तालिब इल्म हमारे वो हैं जो इस स्कूल में पढ़े हैं, हमारी आंखों के सामने वो बड़े हुए हैं। जिस तरह के ये बच्चा बता रहा था, ये छोटा सा था, अभी अगर ये मेरे पास आया था और उसके बाद ये मुसलसल हमारी नज़रों के सामने रहा। तो जब स्टूडेंट लाइफ होती है तो उस वक्त आमतौर पर वो साथ अच्छे लगते हैं जो आपको फैसिलिटेट करते हैं, या थोड़ा सा आपकी गलतियाँ जो हैं उनको नज़रअंदाज करते हैं। अगर कोई थोड़ा सा सख्ती करे तो फिर टीचर को जो है वो थोड़ा सा लगता है कि यार ये सब टीचर सख्ती करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगा कि ये जो सख्ती होती है, ये जो आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, ये जो आपके स्टडी के ऊपर थोड़ा फोकस किया जाता है, ये चीज़ें असल में आपके फ़ायदे के लिए होती हैं और आप लोगों को बनाने के लिए होती है, जिस वजह से आप फिर किसी मुकाम पे जब पहुँचते हैं तो आपको वो सबसे ज़्यादा याद आते हैं जिन्होंने आपको बनाने के लिए आप पे थोड़ी मेहनत की, आप पे सख्ती की, आपको डांटा होगा। ये सारी बातें ऐसे ही। वैसे तो वो एक बड़ा मशहूर ज़माना जोक भी है इस हवाले से कि वो बच्चा जो है उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारे सबसे पसंदीदा उस्ताद कौन से हैं, तो उसने कहा जी मेरे सबसे पसंदीदा उस्ताद जो है वो अंग्रेज़ी वाले टीचर हैं। तो उन्होंने कहा वो क्यों? तो उन्होंने कहा जी जब मैं क्लास में वो आते ही सबसे पहले मुझे बाहर निकाल देते हैं तो इसलिए मुझे तो वही सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए वो पसंद और नापसंद जो है ये चलती रहती है स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन असल बात यह है कि जब आप ज़िंदगी में किसी मुकाम पे पहुंचते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि हमारे लिए किन लोगों ने कितनी एफर्ट की। अपने वालिदैन का मर्तबा और मुकाम भी तभी पता चलता है जब आप खुद वालिदैन बन जाते हैं। असातिज़ा का पता भी तब चलता है जब आप स्टूडेंट लाइफ से निकल के प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, सोसाइटी के एक्टिव मेंबर बनते हैं, फिर आपको पता चलता है कि हमारे असातिज़ा जो है वो किस नज़र से हमें देख रहे थे, हमारे फ्यूचर को देख रहे थे। तो वहाँ तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो अरेंज किया। प्रिंसिपल साहब का खसूसी तौर पर शुक्रगुजार कि इस तरह के एक्टिविटीज़ को वो प्रमोट करते हैं। अगर कोई भी बंदा कोई एक अच्छा प्लान लेके, एक अच्छा आइडिया लेके, एक अच्छी बात लेके उनके पास आए तो तभी उन्हें उसमें रखना निकाला, तभी उन्हें उसको ये निकाल के इसको रहने दें, बल्कि वो फौरी तौर पे अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसको फौरी तौर पे, बल्कि वो खुद चल पड़ते हैं साथ। वो कहते हैं ठीक है मेरे ज़िम्मे अगर कोई काम है तो मुझे बताएं, मैं आपके साथ होकर वो काम करता हूँ।
तो मैं इस चीज़ को बना और हमारे लिए भी एक गाइडलाइन है उनकी तरफ से, हम भी उसी लेकर पे चलते हैं सारे। तो आप सब बच्चों का, सब साधना का और तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अपना एक कॉलेज के सरबराह और इस कॉलेज के हीरो मेरी नजर में, मेरी कॉलेज के हीरो, इन्होंने आते ही कॉलेज का माहौल चेंज करके रख दिया, इन्वायरमेंट चेंज कर दिया और हमारे लिए ऐसे ऐसे इकदाम उठाए जो हमारी स्टडी में बहुत अहम थे। अब मैं सर प्रिंसिपल को दावत देता हूँ, स्टेज पे आए और आज के अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी डिटेल से बात हो गई है, मैंने बड़ी मुख्तसर बात करनी है क्योंकि 2:15 हो गए हैं। हमारा प्लान था कि 2 बजे हम खाना शुरू करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है 15 मिनट तो हो ही जाते हैं। बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्राम अरेंज किया है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मिस निगर साहिबा का, जो क्लास फर्स्ट ईयर की इंचार्ज हैं, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, और उनके साथ वराज शाह साहब का जो सेकेंड ईयर के इंचार्ज हैं और चीफ कोऑर्डिनेटर हैं फंक्शन अरेंजमेंट कमेटी के, चांद आफ्ताब साहब का, और उनकी बाकी टीम का, कि जिन्होंने बड़ा अच्छा फंक्शन अरेंज किया। और उसमें मिसबा साहब ने उनकी बड़ी मावनत की बच्चों को तैयार करने के हवाले से, और बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और आज के दिन के हवाले से ये है कि आप बच्चों में कॉन्फिडेंस देखा है कि कंपेयरिंग के लिए हमारे टीचर माशाल्लाह हैं, लेकिन ये है कि कभी कभार आपसे भी कंपेयरिंग हम इसलिए करवाते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो और आप भी किसी स्टेज पे कहीं जगह बात कर सकें, क्योंकि माइक पे आके बात करना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक मानी रखता है। तो मैं समझता हूँ कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चा कंपेयरिंग कर रहे हैं कि बड़ी अच्छी हैं वो, के साथ साथ उनको हमें गाइड भी करना पड़ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सालों में बच्चे इससे बेहतर परफॉर्म करेंगे। और या वो ये आगे किसी BS क्लास में या यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो फिर जो है बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है ना ये परफॉर्म करेंगे। मैं आपको आज के दिन के हवाले से गाइड करना चाहता हूँ कि बेटा आपने इसके बाद BS करना है, यकीनन कोशिश करें जो साइंस वाले बच्चे हैं वो साइंसेस में ही करें, और क्योंकि मेडिकल और नॉन मेडिकल के हवाले से आप उस दौड़ से पहले बाहर निकल गए थे, तो आप ICS में हैं और आर्ट्स में हैं, तो ये बात ध्यान में रखें कि अभी भी आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल में नहीं गए तो कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आप देख लें मुल्क के अंदर मेडिकल और नॉन मेडिकल की कितना कंपटीशन है। इस हद तक हमारे बच्चे आपके भाई मेहनत कर रहे हैं, और कितने बच्चों को एडमिशन मिलता है और उसके बाद MBBS करने के बाद भी जॉब की क्या सूरत हाल है। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं करना चाहिए, इंशाल्लाह हम अगले साल में वो शुरू कर रहे हैं। बच्चों की तादाद के हवाले से मसला था, हम ज़हनी तौर पे पहले भी तैयार थे, लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूँ ICS वाले जो बच्चे हैं बहुत फील्ड हैं। आप BS करें, आप किसी टेक्निकल फील्ड में BTech कर लें, किसी और फील्ड में चले जाएँ। HEC गौर कर रही है, 2 साल प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है मेरे ख्याल अगले साल में, उस पर बड़ी संजीदगी से गौर हो रहा है, क्योंकि बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन है वो कम हो गई है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। जब से ये BS प्रोग्राम आया है ये बहुत अच्छा है, इसका कंटेंट, इसका सिलेबस बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि थोड़ा तवील है इससे लोग जो है, हालांकि गवर्नमेंट एक इजाज़त दे दी है कि जिस बच्चे ने पुराना BA BSc 2 साल का किया है उसको 5th सेमेस्टर में दाखिला दे रहे हैं, यानी 5वें सेमेस्टर में दाखिला मिल रहा है। राहें खोली हैं, लेकिन अभी भी लोग झिझकते हैं, तो इसलिए साथ साथ एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम चल रहा है 2 साल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और ख़ासतौर पर इलाका इकबाल यूनिवर्सिटी में वहाँ वो BA के बराबर है। तो बहरहाल मैं आपको एडवाइस ये करता हूँ जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो कोशिश करें आगे ग्रेजुएट करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद लॉ कर सकते हैं आप, या आप CSS की तैयारी करें, आप PCS की तैयारी करें। आप देखिए अभी मुझे पता चला है कि हमारे एक जानने वाले हैं तो उनके जो है ना वो AC बन गए हैं माशाल्लाह, और कई लोग असिस्टेंट कमिश्नर और रेवेन्यू ऑफिसर बन रहे हैं। तो आर्ट्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा फील्ड खुली हुई है, तो इसलिए आप लोग इस बात से कतई नज़र कि अभी भी कोई रास्ते बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं आपके लिए, तो आप कोशिश करें कि आप आर्ट्स वाले बच्चे जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएँ, और जो ICS वाले हैं वो BCS कर लें, आगे BS कंप्यूटर साइंस कर लें। BS कंप्यूटर साइंस बड़ी अच्छी फील्ड है, BS मैथ कर लें, BS फिजिक्स कर लें, इतनी ज़्यादा फील्ड आपको बता रहे हैं। दूसरा जैसे बाकी टीचर बता रहे थे, कोशिश करें अपने इदारे का, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। जैसे यहाँ पे आपने 2 साल बड़े अच्छे गुजारे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएँ तो वहाँ के रसूल ज़वाबत को जेल में रखें, याद रखें इंजॉय करने से कोई बंदा मना नहीं करता,
لیکن جب حدود قیود کو آپ کراس کرتے ہیں پھر مسائل ہوتے ہیں. دیکھیں یہ یہاں پہ ہمارے ہائر سیکنڈری اسکول ہے اور کالج نہیں تھا، لیکن میں نے کوشش کی آپ کو اچھا ماحول دیا ہے. ان شاء اللہ اس سے آگے مزید بہتر ہوگا. کالج آپ کو بلاک بلند کیا ہے، فرنیچر بہتر دی، یہ آپ کے رائٹس تھے. ان شاء اللہ اگلے سالوں میں ہم بہتر کر رہے ہیں. اب آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے بھائیوں کو کزن کو یہاں ریفر کریں جنہوں نے میٹرک کے ایگزام دیے ہیں، فرسٹ ایئر میں ہمارے پاس بھیجیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نئے طریقے کے ساتھ ان سے ڈیل کریں گے. نئے ٹیچر بھی آ رہے ہیں، میڈیکل نان میڈیکل بھی شروع کر رہے ہیں. تو یہاں پہ جتنا آپ نے وقت گزارا ہے یہاں پہ آپ کو پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے. یہاں بڑی اچھی بات ہے، بچے ٹیچر کی تعریف کر رہے ہیں. مدر ہاشمی صاحب ہمارے بہت اچھے جو ہے نا وہ ٹیچر ہیں. ظاہر ہے جو بہت اچھے طریقے کے ساتھ لیکچر اپنا ڈیلیور کرتے ہیں، لیکن آپ کے باقی ٹیچر جو ہیں انہوں نے بھی اپنا ایڈی چوٹی کا زور لگایا ہے آپ کے ساتھ. لیکن ظاہر ہے ہر بندے کے اپنے اپنے شائننگ اسٹار ہوتے ہیں، ایک ڈلیور کرنے کے ایک پوائنٹس ہوتے ہیں. تو مدر ہاشمی صاحب کا ہلکا ابھاؤ بہت زیادہ ہے. ہمارے باقی ٹیچر ابرار شاہ صاحب ہیں، ثاقب صاحب ہیں، میڈم نگرت ہیں، قمر شاہ صاحب ہیں، شاہد الرحمان صاحب ہیں، اسوا صاحب ہیں، یہ بھی وہ روشن ستارے ہیں. چاند آفتاب صاحب ہیں جنہوں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کرام مرزا رزاق صاحب یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں. آپ نے آئندہ بھی ان سے رابطے میں رہنا ہے. یاد رکھیں جو پرائمری ٹیچر ہوتا ہے وہ ساری عمر بندے کو گائیڈ کرتا رہتا ہے. یہ تو آپ کے میٹرک اور انٹر کے ٹیچر ہیں. اس لیے اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو ان ٹیچر کی عزت بھی کرتے رہو، اپنے والدین کی دعائیں لیتے رہو. اور ابھی ہماری نا بات ہوتی رہتی ہے سفر میں، آگے پیچھے میرا تھوڑا سفر ہے. آج کل کی جنریشن کا یہ ہے کہ بڑے جو اچھے بچے ہیں وہ بھی کمبل میں جب لیٹتے ہیں نا تو فٹ کے موبائل پکڑے ہوتے ہیں. اور بچے والدین سمجھتے ہیں ہمارا بیٹا آرام کر رہا ہے. تو بیٹا یہ ہیبٹ چھوڑ دو، موبائل کا ایک ٹائم رکھیں. ٹھیک ہے، میں نے اپنے بیٹے کو بھی کہا ہوا ہے موبائل لے لیتا ہوں اسے. تو اس لیے کیونکہ بچے اگر بچے ہوتے ہیں موبائل کا استعمال کم سے کم کرو اور اپنی نظر نیچے رکھا کرو. جب والدین یا ٹیچر آپ کو کہتے ہیں پڑھو تو غصہ نہ کیا کرو. بچے کہتے ہیں جی میں پڑھ کے اب تھوڑا میں تو تھوڑا ٹائم موبائل یوز کریں. آپ کے پیپر دیں، ٹیلی ویژن کو کم سے کم دیکھیں. میڈیا بہت ظالم چیز ہے، اس جتنا بچ سکتے ہو بھائی. اگر آپ کو میڈیا سے بچ گئے، موبائل سے بچ گئے تو زندگی آپ کی سیو ہو جائے گی. اور اپنے بڑوں کا، چاچو کا، والد صاحب کا، والدہ کا غصہ نہ کیا کریں. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اتنے اچھے بچے ہوں، سوبر بچے ہوں، وہ بھی جب پڑھنے کے لیے ان کو گئے موبائل چھوڑنے کے لیے غصہ کرتے ہیں. اور جو بچے تھوڑے بہت آگے سے غلط کلمات والدین کو کہ میں تو وہ بہت بری بات، بہت ہی بری بات. اور جو بڑے اچھے بچے ہوتے ہیں وہ اچھی بات یہ ہے کہ نمازیں بنگانا پڑھیں، تلاوت کیا کریں، کوشش کریں رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں. آپ جب لیٹ نائٹ تک موبائل یوز کرتے ہیں، لیٹ سوتے ہیں، صبح بیٹا آپ لیٹ اٹھتے ہیں، پھر آپ پڑھ نہیں سکتے. یہ بات ذہن کا آج سے بنا لیں. اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے ایک تو اپنی مارننگ واک ضرور کرو، ایک ٹائم پہ پڑھو اور بڑوں کا احترام کرو. اگر کوئی بندہ آپ کو ناگوار بات بھی گزرتی ہے نا، اگر فرض آپ کے محلے کا کم پڑھا ہوا یا ان پڑھ بندہ آپ کو کوئی گائیڈ کرتا ہے تو یہ نہ کہ اس کو کیا پتہ مجھے کیا گائیڈ کرے گا. بیٹا بات یہ ہے کہ بعض بات سی بے ادب بے سی. اس لیے جو بات کر رہے ہیں تو بات پہ غور کیا کریں، یہ نہ غور کیا کریں اس کی کتنی تعلیم ہے. بعض دفعہ تھوڑا پڑھے ہوئے ان پڑھ لوگ بڑی سی بات کر لیتے ہیں. اس لیے اپنے گلی محلے میں، اپنے گاؤں میں اگر آپ جاتے ہیں تو بڑوں کی دعائیں لیا کریں. اور اپنے بہن گھروں میں بھی بہن بھائیوں سے اکثر آپ جو ہے نا لڑ پڑتے ہیں چھوٹی سی بات پہ نہ، چھوٹوں سے شفقت کیا کریں، بڑوں کا ادب کیا کریں. یہ جو نئے زمانے کے اندر بہت زیادہ تلخی آ گئی آپ لوگوں میں، سب میں یہ کم کریں. جب یہ تلخی کم ہوگی اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے اس کو معاف کرنا سیکھیں. اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو اس سے مدد کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے آپ کی پرسنالٹی بھی ڈیولپ ہوتی ہے. معاشرہ جو ہے اس میں بہت سے بگاڑ ختم ہو جاتے ہیں. جب آپ کمپرومائز کر رہے ہیں، ایکسکیوز کر لیتے ہیں، معاملہ ختم ہو جاتے ہیں. آپ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، آپ اپنے ہیڈ سے، اپنے انچارج سے، آپ اپنے والد صاحب سے، اپنے دوست سے 2 لفظ بولنے ہوتے ہیں سوری، اور وہ آپ سوری کہتے ہیں ایک توبہ ہوتی ہے، ایک توبہ تو نصوح ہوتی ہے. کوشش کریں کہ اللہ کے ساتھ توبہ تو نصوح کریں، آئندہ نہیں میں کروں. تو یہ میں نے نصیحتیں تھوڑی لمبی نہیں کرنی، صرف آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ بیٹا آپ نے پڑھنا ہے اور اپنا ایک مقام حاصل کرنا ہے. بہت تلخیاں ہیں زندگی کے اندر. یقین کریں روزگار کے لیے اگر آپ صحیح پڑھیں گے تو روزگار آپ کے پیچھے پیچھے بنے گا. کہتے ہیں نا بے روزگاری بہت ہے. ابھی بھی جو قابل بچے ہیں، ٹیلنٹڈ بچے ہیں، گھروں کے آفر آتی ہے. دیکھ لیں آپ کے سامنے بہت سے بچے ہوں گے، ٹیچر کے بچے ہوں گے. میں آپ ایک مثال دے رہا ہوں، بران شاہ صاحب کے بیٹے ہیں، دیکھیں آپ کے سامنے ماشاء اللہ علم کا برسے روزگار ہے. آپ کے اور کئی ہمارے ایلومی میں ہم نے رضا رزاق صاحب، ثاقب صاحب اور
अबरार शाह साहब, चांद साहब ने बनाई है, एक्स स्टूडेंट ड्रीम, देख लें, डॉक्टर है हमारे स्टूडेंट, इंजीनियर है, वर्कर के बच्चे। तो इसलिए जरूरी नहीं है, वर्कर का बच्चा भी बहुत कुछ बन सकता है। तो इसलिए अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा कुछ बन जाएंगे। और अदब को अपने दिल से ना निकालें। अगर किसी से, किसी टीचर से आपकी फर्ज करें 2 सालों में कोई मसला हो गया तो आपने माफ़ करके जाना है। वो टीचर आपके नुकसान में नहीं था, आपके फ़ायदे के लिए उसने कुछ कहा। और असातिज़ा कराम से इंशाल्लाह मैं पहले भी तोक़ो करता हूँ, वो आपको माफ़ कर देते हैं। फर्ज करें आज आपसे हुई, अगले दिन आप सुलह कर लें। इस हमेशा याद रखें, ज़िंदगी के अंदर जो लोग इस्तिकामत वाले होते हैं, जो माफ़ करने वाले होते हैं, वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। दुनिया का माल इधर रह जाना है, कोई पता नहीं ज़िंदगी का हमारा अगला लम्हा क्या है। तो इसलिए अच्छा वक्त गुजारें कि अगर आप रहें तो लोग आपको याद करें, और आप चले जाएँ तो लोग भी आपको याद करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब्दुल रज़ाक साहब से एक अमृताई नज़्म है, वो उन्होंने आपको सुनानी है। जनाब अब्दुल रज़ाक सर। पहले तो मैं अपने अलविदा होने वाले बच्चों के बारे में बात करूँगा कि ये यहाँ से जा रहे हैं। तो हम भी कभी पढ़ते थे और हम भी किसी कॉलेज से इसी तरह ही अलविदा हुए थे, आप भी हो रहे हैं। इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में इसी तरह कामयाब होंगे जैसे आज हम हैं। मैं अपनी हिस्ट्री सारे नहीं बयान करता, लेकिन यह मैं एक 10वीं क्लास से तल्लुक़ रखता हूँ और मैंने साथ काम भी किया था और साथ पढ़ा भी था। यानी दिन को काम करता था और रात को बैठ के पढ़ता था। और अल्लाह के बदल से आपके सामने हम पहले SST था, आप प्रमोट हो गए। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ये मौका दिया है और मैं आपके सामने SS कंप्यूटर साइंस है। तो आप भी अगर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह मौके काफ़ी मिलेंगे, तो आप प्रमोट होंगे। मैं आपको अलविदा के लिए कुछ अशार सुनाना चाहता हूँ। कह रही हैं दर्द में डूबी फ़ज़ाएं अलविदा, कह रही हैं दर्द में डूबी फ़ज़ाएं अलविदा, 4 सू छाई हैं अश्कों की गडाएं अलविदा। ये दरो दीवार, ये सहने चमन, ये रौनकें, ये दरो दीवार, ये सहने चमन, ये रौनकें, किस तरह तेरी रफ़ाकत को बुलाएं अलविदा। ज़ुल्मते शब में हमेशा तू जले मिसले चिराग, ज़ुल्मते शब में हमेशा तू जले मिसले चिराग, छूने पाए मत कभी तुझको हम आए अलविदा। तो इसी के साथ मैं जाना चाहता हूँ।